Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lectures, we have already studied about the digestion of food, how the food is digested and absorbed in our body, and how we obtain energy from that digested and absorbed food. In today's lecture, we are going to study about excretion. Now we have already seen that not all the food we eat is absorbed by our body and utilized by our body. Some of the food remains unabsorbed and unutilized, that is the waste. So the metabolic activities generate some nitrogenous materials which need to be removed from our body. So the biological process involved in the removal of these nitrogenous waste is termed as excretion. तो what is excretion? Excretion वो process है, वो biological process है which is involve होता है किसमें इन nitrogenous waste को हमारी body से remove करने में. तो उस process को बोलते हैं excretion. मतलब the process of removal of waste from our body is excretion. Now, in unicellular organisms, we have already seen the case of amoeba. The unabsorbed food, it diffuses on the surface of the cell, the unicellular organism, and gets diffused into the environment. But in case of multicellular organisms, we need special organs for the process of excretion. So that organs which are involved in the process of excretion makes up the excretory system. So our excretory system consists of a pair of kidneys, okay, ureters, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. These are the major organs involved in the process of excretion. Now, the kidneys are located in the abdomen, on either side of the backbone. Okay, one on either side of the backbone. The urine is produced in the kidneys, then it is sent to the ureters. From the ureters, it reaches the urinary bladder, and from the urinary bladder, it is excreted through urethra. So this is the process, in short, a short process. Now we will be going to study this in detail. So first of all, how is urine produced? So before moving on, how is the urine produced? What is the purpose of producing urine? So what is the purpose? What is the purpose of making urine? Urine produce होने का, हमारे बॉडी में बनने का purpose क्या है? So the main purpose is filtration, to filter out nitrogenous waste, like urea or uric acid from our blood, from the blood. So blood में से कुछ जो यूरिया, यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे क्या होना पड़ता है? फिल्टर आउट. तो उसे फिल्टर आउट करने के लिए यूरिन प्रोड्यूस होती है. सो पर्पस क्या है इसका? टू फिल्टर आउट द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. ओके, नाउ अब इसे फिल्टर करने के लिए हमें कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट चाहिए. जैसे टी होती है चाय, उसे फिल्टर करने के लिए हमें एक स्ट्रेनर चाहिए. ठीक है, हम चाय छन्नी होती है, उससे क्या करते हैं? हम चाय को फिल्टर करते हैं. तो वैसे सिमिलरली इन नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए हमें कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए जो क्या करे? इसे फिल्टर करे. सो द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी जो कहां पर होती है? फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी. सो द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी क्या होते हैं? वो इट इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज. तो क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है. क्लस्टर मतलब एक झुंड होता है. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन होता है, क्लस्टर होता है, झुंड होता है. ठीक है,
ईच कैपिलरी, हर एक कैपिलरी में क्या होती है, एक कॉइल्ड ट्यूब होती है. सो ईच कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब. एक कॉइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है, ऐसे कॉइल करी हुई ऐसी ट्यूब होती है, एक कॉइल्ड ट्यूब होती है. उस ट्यूब में, उस ट्यूब की जो एंडिंग है उसमें विथ अ कप शेप्ड एंड, उसका जो एंड है वो किसके जैसा होता है, कप जैसा, ऐसा एंड होता है उसका, कप शेप. ये कप होता है ना, ये कप होता है, तो दिस इज अ कप, ऐसा एक कप होता है और इस तरह से यहां से कॉइल्स होती है. ओके, और इस तरह से ये एक लूप होता है. तो ऐसे एक ब्लड कैपिलरी होती है, कॉइल्ड ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसका एंड कैसा होता है, कप शेप्ड एंड. और वो जो कप शेप्ड एंड है उसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल. ओके, सो दिस was a coiled tube with a cup shaped ending. Now, अब इसका काम क्या है, ये जो coiled tube है, जो that is made up of thin capillaries, ये क्या करता है, this collects the filtrate. इसका काम क्या है, to collect the filtrate. जो filtrate है उसे क्या करता है, ये कलेक्ट करता है. ओके, ईच किडनी, हर एक किडनी में हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स. एंड दीज, ये जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स. इसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स. सो दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर नोन एज नेफ्रॉन्स. इन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है. नाउ, अब यहां पर फिल्ट्रेशन हो गया. अब फिल्ट्रेशन एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, स्टेप्स में होता है. सो सबसे पहले जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेशन बहुत स्टेप्स में होता है, बहुत स्टेप बाय स्टेप होता है. सो सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, सच एज, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, पहले जो सबसे पहला जो फिल्ट्रेशन हुआ, फर्स्ट एक बार जो फिल्ट्रेशन हुआ, तो उस इनिशियल फिल्ट्रेट में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर. सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर. दीज ऑल सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस जो इनिशियल फिल्ट्रेट में अलग हुए हैं, दे आर अगेन सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड. दे आर अगेन सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड. इन्हें वापस एब्सॉर्ब किया जाता है. ठीक है, दे आर अगेन सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब. इन्हें वापस से क्या क्या किया जाता है, रीएब्सॉर्ब किया जाता है. ठीक है, जैसे कोई एक हेल्दी एडल्ट है. ओके, इन अ हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी एडल्ट में जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, ठीक है, द इनिशियल फिल्ट्रेट इज 180 लीटर. 180 लीटर जो है वो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है. लेकिन 180 लीटर हमारी बॉडी में से बाहर नहीं आता, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. 180 लीटर बहुत ज्यादा होता है. सो 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट में से जो डेली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, वॉल्यूम एक्सक्रीटेड is 1 liter or 2 liter. 1 liter depending on the amount of water present. So 1 liter या 2 liter हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट होता है आउट ऑफ 180 लीटर. मीन्स अगर 2 लीटर भी एक्सक्रीट हो रहा है, so 178 लीटर इज रीएब्सॉर्ब्ड. ओके, इतना रीएब्सॉर्प्शन होता है इनिशियल फिल्ट्रेट में से. ओके, सो इनिशियल फिल्ट्रेट में से कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर वापस क्या होते हैं, वापस से एब्सॉर्ब होते हैं, रीएब्सॉर्ब होते हैं. ठीक है, एंड दे आर रीएब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब. जब यूरिन, नेफ्रॉन के जो ट्यूब है, जो ट्यूब्स है, कॉइल ट्यूब है, उसमें से जब यूरिन फ्लो करती है तो ये सारी चीजें उसमें क्या हो जाती है, रीएब्सॉर्ब हो जाती है. ओके, रीएब्सॉर्ब होने के बाद
जो यूरिन फॉर्म होती है, that urine goes to the ureters, okay, and from the ureters, ठीक है, ureters जो है, ureters connect the kidney to the urinary bladder. तो ureters क्या करते हैं, they connect the kidney to urinary bladder. ठीक है, किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इट इज मस्कुलर, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. और जब यूरिन इसमें फिल होती है तो ये क्या करता है, इट एक्सपांड्स, ठीक है, एक्सपांडेड ब्लैडर में यूरिन फिल्ड रहती है, ठीक है, कब तक, इट लीड्स टू, जब तक जो यूरिन उसमें धीरे धीरे फिल होती है और यूरिन उसमें स्टोर होती है, यूरिन इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैडर, जब तक वो एक्सपांडेड ब्लैडर का जो प्रेशर है वो कब तक, दैट लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट, ठीक है, जब तक हमें उसे पास आउट करने की अर्ज ना हो तब तक यूरिन उसमें क्या रहती है, फिल रहती है, ठीक है. अब ये जो ब्लैडर है, दैट इज दिस ब्लैडर इज अंडर नर्वस कंट्रोल. जो ब्लैडर है वो हमारे नर्वस कंट्रोल में है, मतलब हम कभी कभी क्या होता है कि हम यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो अर्ज है उसे पास आउट करने की, उसे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाते हैं. क्यों कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, ठीक है. सो जो ब्लैडर है वो इट इज अंडर द नर्वस कंट्रोल. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन and this is the process of this is the working of our excretory system. Now as we know that kidneys are vital organs for our survival, they are very essential. Why? Because they filter out all the waste, all the harmful materials from our body and excrete them out from the body. Now in case of some infection, injury or restricted blood flow, the kidneys, the efficiency of the kidneys reduce, so the activity of the kidneys reduces. So the injury, infections or some restricted blood flow leads to the reduce of activity in the kidneys. This leads to the accumulation of poisonous waste. So reduced activity of kidneys leads to accumulation of waste in the body, अगर in the body or in blood, okay. अगर किडनीज की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, किडनीज का काम बंद हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो वेस्ट है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, पॉइजनस वेस्ट, और वो बाहर बॉडी के नहीं आ पाएगा. एंड दिस कैन इवन कॉज डेथ, ठीक है, इससे डेथ भी हो सकती है. बहुत सारे बोलते हैं किडनीज फेल हो गई है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किडनीज फेल. तो किडनीज फेल मींस किडनीज फेल टू फिल्टर आउट, ओके, फिल्टर आउट करना बंद कर देती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है. सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी फेल हो जाए, सो इन दैट केस आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड. So in case of kidney failure, we use artificial kidney. What is an artificial kidney? It is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. So what is artificial kidney? A device used to remove nitrogenous waste from blood through dialysis. Okay, through dialysis. This is known as hemodialysis. The process is known as hemodialysis. Now, ये क्या होता है प्रोसेस और ये कैसे होता है? So it contains a number of tubes. बहुत सारी ट्यूब्स होती है, ये रही. These are the tubes. और ये जो ट्यूब्स है दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल हमने पढ़ा है क्लास 9 में. द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीजों को अपने में से अंदर बाहर जाने देते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्यूब्स
which is सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजों को वो अपने में से अंदर बाहर जाने देते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल लाइनिंग, वॉल्स जो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब ये जो ट्यूब्स है, दिस ट्यूब इज द सिस्टम ऑफ ट्यूब इज सस्पेंडेड इनसाइड अ टैंक। ये एक टैंक है, इसे एक टैंक के अंदर सस्पेंड किया जाता है। ओके, सस्पेंडेड इनसाइड अ टैंक। इस टैंक में क्या होता है, दिस टैंक कंसिस्ट ऑफ द डायलिसिंग सोल्यूशन। इसके अंदर वो सोल्यूशन फिल्ड होता है जो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, नाउ ब्लड जो है ये हैंड में ये लगाया जाता है पूरा सिस्टम। ब्लड यहां से एंटर होता है एंड मूव इनसाइड द ट्यूब्स, ट्यूब्स के अंदर जाता है। अब ट्यूब्स जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, और टैंक का और ब्लड का जो डायलिसिंग सोल्यूशन है उसका और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, कम ज्यादा नहीं है, ब्लड सेम प्रेशर। सेम प्रेशर पे क्यों रखा है, ताकि जो ब्लड है, जो सॉल्वेंट है, वो हमें पता है कि ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट इधर उधर ना हो जाए, इसलिए दोनों को सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे रखा जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, द पेशेंट ब्लड, जो पेशेंट का ब्लड है, इट इज पास्ड थ्रू द ट्यूब्स। ठीक है, उसे ट्यूब से पास किया जाता है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ब्लड इज पास्ड थ्रू द ट्यूब्स, ट्यूब्स में से ब्लड को पास किया जाता है। नाउ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस डायलिसिंग सोल्यूशन के अंदर पास हो जाते हैं। ओके, सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिसिंग सोल्यूशन। डायलिसिंग सोल्यूशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास हो जाते हैं। तो ये ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस डायलिसिंग सोल्यूशन में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो वेस्ट डायलिसिंग सोल्यूशन है, यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन, वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और न्यू जो फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन है वो इसमें फिल होता जाता है। ठीक है, तो ये फिल्टर हो गया। ओके, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायलिसिंग फ्लूइड में बाय डिफ्यूजन, ठीक है, कैसे होंगे, बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूज होके ट्रांसफर हो जाता है इनटू द डायलिसिंग सोल्यूशन। और जो फ्रेश ब्लड है, यहां से जो फ्रेश ब्लड आया, वो फ्रेश ब्लड अब जो है, मतलब फिल्टर्ड ब्लड वापस से उस ह्यूमन बीइंग के जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस in which the artificial kidneys they work, they do the process which is done in the natural kidneys। जो natural kidneys filtration का process करती है, वही process इस artificial kidneys पे किया जाता है ताकि blood क्या हो जाए, filter हो जाए। ठीक है, अब एक चीज जो एक ड्रॉबैक है दिस आर्टिफिशियल किडनी का, विच इज जो नेचुरल किडनीज कर पाते पर आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर पाती, दैट इज द प्यूरिफाइड ब्लड को एज इट इज वो क्या कर देते हैं, पंप बैक कर देते हैं इनटू द पेशेंट। इट इज सिमिलर टू द किडनी बट द रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो इसमें नहीं होता। ठीक है, जो हमने देखा था कि 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, फिर उसमें से 1 to 2 लीटर ही एक्सक्रीट हो पाता है, बाकी 178 लीटर हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो वो जो रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो ये आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर पाती। ठीक, विच इज अ गॉड गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस। Okay, so this is all with the process of excretion in human beings. Now we have already seen about excretion in human beings. Now moving on to excretion in plants. Okay, so we know that oxygen is also a waste which is generated during photosynthesis. So oxygen is also excreted. It is a waste generated during photosynthesis. So for plants, oxygen is also a waste. So it is also excreted. Now, to get rid of excess of water, plants use the process of transpiration. So the plant get rid of excess water through the process of transpiration. Okay. Now, water is excreted, oxygen is excreted. Now, many other plant waste, the many plant waste are stored in vacuoles. So some
some of the plant waste, they are stored in vacuum and some in the leaves. Okay, so leaves में जो वो stored होते हैं, some are stored in vacuum and some are stored in the leaves. तो जो leaves में store होते हैं, तो the leaves they dry and they fall off. वो क्या हो जाती है? Fall off हो जाती है. तो ये भी क्या है? एक excretion का process है. Plant के लिए excretion का part है. तो जो leaves है, उनमें क्या होते हैं? They have dead cells within them. उनमें क्या होते हैं? Dead cells होते हैं. और ये जो डेड सेल्स है, दिस इज अ वेस्ट फॉर द प्लांट, तो लीव्स क्या हो जाती है? दे फॉल ऑफ. ओके, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स. ठीक है, रेजिन और गम्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं. ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम्स इन द ओल्ड जाइलम. जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज होते हैं उसमें स्टोर होते हैं, इन ओल्ड xylem. Okay, and plants, they also excrete waste, some of the waste into the soil. So they also excrete waste into the soil. So this is how the excretion process takes place in plants, and these are the ways in which the plants excrete. Okay, so this is all with the process of excretion in humans as well as excretion in plants. And this is all with today's class.